So we are starting with lecture number 9. In lecture number 8, I gave you some questions as homework of assignment number 3. I remember very well. Question number 41 onwards up to 75, whatever questions were there on dot product, I have already given you those questions as homework. On whatever day you are watching that lecture, right? Suppose you are watching that lecture on Thursday, then I will send those solutions to you by Friday or Saturday. And suppose you are watching that lecture on Monday, then I will send you those solutions by Tuesday or Wednesday, right? So I am not wasting time on simple questions. डॉट प्रोडक्ट में अपना एक और आर्टिकल बाकी है, डॉट प्रोडक्ट में अपना एक और आर्टिकल बाकी है, एंड दैट आर्टिकल इज फ्लक्स. ये वर्ड मैंने बार बार यूज किया था, राइट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका स्टाइल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द सेम, उसका स्टाइल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द सेम. इट इज डिनोटेड एज द ग्रीक अल्फाबेट phi. The pronunciation is PSI. P is silent. It is something like pseudopodia. It is something like pseudopodia. It is something like psychology, right? Over here we don't say pseudopodia or psychology. So we don't call this as papai. P is silent. P is silent. Right? Now let us try to understand what exactly speaking is the meaning of this. Here in the very first lecture, there were two terms. If you talk about area, area is a scalar. But if you have arrow on the top, it is area vector. It is a vector. ये दोनों में फर्क क्या है? ध्यान से सुनो. If I am giving you a rectangle, right? This is length and this is breadth. So area is LB. अगर मैं इसको exactly right angle पे एक वेक्टर बताऊं, right? तो इसको एरिया वेक्टर बोलते हैं. अपने दो डेफिनेशन बाकी है, याद है आपको? वन इज पोलर वेक्टर, अदर इज एक्सियल वेक्टर. एक्सियल. तो बेटा ये लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ हुआ, ये मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स हुआ, और ये वेक्टर जो एग्जैक्ट सेंटर से पास होता है, सेंटर से, वो वेक्टर को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं. सो रिमेंबर, एरिया इज अ स्केलर बट सरफेस एरिया इज अ वेक्टर. कोई भी एरिया को आप परपेंडिकुलर वेक्टर बनाओगे ना, तो उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं. एरिया वेक्टर. फॉर एग्जांपल दूसरा एक शेप लेता हूं मैं, सर्कल. सर्कल का एरिया क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर. इसके एग्जैक्ट सेंटर से मैंने ये पेन पास किया, देखो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर. ध्यान से देखो, सेंटर से तो ये लाइन भी पास होता है और सेंटर से ये लाइन भी पास होता है. दिस इज इन द प्लेन ऑफ द सर्कल, इन द प्लेन, राइट? या आप जब सर्कल पेज पे बनाओगे तो दिस इज इन द प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए बेटा. मतलब आप एरिया जो भी लेते हो, जो भी, राइट, उसको परपेंडिकुलर बनाने का. फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉटल लिया, उसका ये कैप लिया, तो ये एरिया वेक्टर हुआ. बॉटल का बेस लिया, बेस, तो बेटा ये एरिया वेक्टर हुआ. इज दैट क्लियर? एरिया वेक्टर is perpendicular to given area. Area vector is perpendicular to given area. अब एकदम ध्यान से देखो, यहां पे मैंने एक मेटल प्लेट लिया और दूसरा मेटल प्लेट लिया. ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है. Right? Let us assume this ball is positively charged and the ball opposite to me is negatively charged. Then the lines which are perpendicular to the ball going from this ball to that ball are called electric lines of force. Do you see these arrows? Do you see these black lines, beta? These black lines are electric lines of force, right? There are infinitely many lines. There are infinitely many lines. मैंने तीन ही बताया, 1, 2, 3, right? So this is a positive plate, and if this is a negative plate, then the lines of force are perpendicular to the plate, right, going from one plate to the other plate, going from one plate to the other, going from one plate to the other. They will always travel from positive to negative. ये लाइन मेरा जितने ज्यादा होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग. ये लाइन जितने ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग. आपके मोबाइल फोन में 3.7 वोल्ट का बैटरी होता है. आपका ये जो रिमोट कंट्रोल है, उसमें 1.5 का दो बैटरी लगता है, राइट?
आपके वॉच में 0.5 वोल्ट का सेल लगता है, राइट? लेकिन आपका हाउस होल्ड अप्लायंस सॉकेट दिख रहा है बेटा 230 वोल्ट, है ना? अगर गलती से मेरा हाथ लग गया, झटका लगता है कि बाल खड़े हो जाते हैं कि नहीं, लेकिन उसके लिए बाल का होना जरूरी है. डोंट लाफ एट मी, ओके? इट्स ओके. सो if it is 0.5 volt, 3 volt, 15 volt and 230 volt, can I say 230 volt is going to give me more झटका? लोकल ट्रेन की जो वायर होते हैं ना, पेंटोग्राफ वायर होते हैं, ओवरहेड वायर, उसमें 25,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, राइट? बाई चांस आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो इमीडिएट डेथ. मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितने ज्यादा लाइन उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड, जितने ज्यादा लाइन उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड. मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों साथ में समझा रहा हूं, बिकॉज दोनों का लॉजिक सेम है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्लेट 1 पॉजिटिव, प्लेट 2 नेगेटिव. पहले सिर्फ डायग्राम समझ लो. अभी नॉर्थ पोल, साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, राइट? डू यू सी दिस ब्लैक लाइंस? These black lines are magnetic lines of force. Magnetic lines of force. कैपिटल E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ. हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्ड यूज करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है ब्राइटनेस. ध्यान से देखो बेटा, मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं. ये क्लासरूम के सारे लाइट्स में बारी बारी से ऑफ करूंगा, राइट? जब सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे ना, that means intensity of light is minimum. check करो 1 2 3 4. ठीक है? अब मैं वापस ऑन कर रहा हूं 1 2 3 4, राइट? ये मैंने लाइन ऑन की. मैं और दो लाइट ऑन कर लेता हूं 5 6. दैट मींस द क्लासरूम इज मोस्ट ब्राइट. ये दो लाइट की मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने बंद कर दिया. विदाउट दैट आल्सो द बोर्ड कैन बी सीन इजीली. इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है ब्राइटनेस, राइट? जब मैं सारे लाइट बंद कर देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम. सारे लाइट ऑन कर देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम. अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने माइक निकाल दिया. अभी मैं एकदम सॉफ्टली बोलने वाला हूं, एकदम सॉफ्टली. आपको कुछ नहीं सुनाई देगा. अभी मैं लाउडली बोल रहा हूं, अभी मैं माइक यूज करके लाउडली बोल रहा हूं. इंटेंसिटी ऑफ साउंड. Normal human ear can understand the intensity up to 80 to 90 decibels. उससे ज्यादा इंटेंसिटी हो गया तो it is dangerous for your sense of hearing, right? Intensity of light समझा, intensity of sound समझा, अभी intensity of electric field. ये बेटा जितने ज्यादा लाइंस है फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग. लाइकवाइज ये जितने ज्यादा लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग. कोई मैग्नेट एकदम वीक होते हैं, कोई मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. अब वो डिपेंड करता है बेटा वो मैग्नेट आप कौन से डिवाइस में यूज कर रहे हो, राइट? नॉर्मल मैग्नेट्स होते हैं ना, हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो वीक होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. इज दैट क्लियर? सो पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय एरो. दिस लाइन, these are known as electric lines of force, these are known as magnetic lines of force. This is denoted as E vector, this is denoted as B vector. यहां तक समझा बेटा? नेक्स्ट एरिया वेक्टर पे आ जाए. ध्यान से देखो बेटा, मैंने यहां पे रेक्टेंगुलर एरिया रखा हुआ है, यहां पे, है ना? ये रेक्टेंगल मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, ऐसे. यहां पे मैंने सर्कुलर एरिया रखा हुआ है, सर्कुलर. ये एरिया मैं ऐसे नहीं रख रहा हूं, ऐसे रख रहा हूं. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन विजुअलाइज माय फिंगर्स एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट? एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट? अभी डेफिनेशन देखो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing normally it means at right angle through the given area is called electric flux. वापस देखो बेटा, ये एरिया है, मेरे फिंगर लाइंस ऑफ फोर्स है. नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग एट राइट एंगल्स थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके? अगर यही फिंगर्स को आप मैग्नेटिक लाइन समझते हो तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया. ये बेटा डेफिनेशन हुआ. एक और बात देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग एट राइट एंगल्स थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स. अब एकदम ध्यान से देखो, एक लाइन पास हुआ, 2 3 4 5 6 7 8, जितने ज्यादा लाइन पास होंगे फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग, फ्लक्स उतना ज्यादा.
कम लाइन पास हुए तो फील्ड उतना वीक। अब जैसे ये लाइन में 6 रख रहा हूं, लेकिन ये एरिया मूव कर रहा हूं, देखो 5 लाइन, फिर ये एरिया मूव हुआ 4 3 2 1, ये एरिया बाहर चला गया ना, एक भी लाइन पास नहीं होगा तो फ्लक्स इज 0, राइट। अब ये अंदर आया, फ्लक्स मैक्सिमम, वापिस मिनिमम। जितने ज्यादा लाइन पास होंगे फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग। तो पॉइंट नंबर 1 मिला। पॉइंट नंबर 1, मेरे फिंगर्स क्या इंडिकेट करते हैं? ई वेक्टर, या तो डी वेक्टर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये मेन है, ये एरिया है ना बेटा, ये एरिया है, तो ये एरिया वेक्टर हुआ, ये ब्लू वाला, ये पेन। अब ध्यान से देखो, मेरे फिंगर्स के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में क्या एंगल है? माय फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू द एरिया, दैट मींस माय फिंगर्स आर पैरेलल टू एरिया वेक्टर। वापस देखो बेटा, my fingers are at right angles to the area, that means my fingers are parallel to this. That means flux is E bar dot A bar dot, this is the example of dot product. या तो magnetic flux is B bar dot A bar, electric flux is electric intensity dot area vector, magnetic flux is magnetic induction या तो magnetic intensity dot area vector। डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? ई ए कॉस थीटा या तो बी ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, थीटा क्या होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा क्या होना चाहिए? थीटा इज एंगल बिटवीन बी बार या तो ई बार एंड एरिया। ये रॉन्ग है क्योंकि ये एरिया है। थीटा should be angle between E bar and A bar, दो वेक्टर के बीच का एंगल, अभी देखो ध्यान से, my finger is electric intensity and the pen is area vector. So what is the angle between my finger and area vector? 0. Therefore cos of 0 is 1 and therefore my answer is highest. अभी एकदम ध्यान से देखो, ये लाइन तो ऐसे ही जाएगा ना, ये लाइन ऐसे ही जाएगा, हाँ ये फिक्स है, ये वॉल पे वो वॉल पर। अब ये एरिया है ना, वो एरिया को मैं घुमा रहा हूं और ये एरिया ऐसा हो गया, तो ये इसमें से पास ही नहीं होगा ना बेटा, ये इसमें से पास ही नहीं होगा। यू नो व्हाई? दिस इज ई वेक्टर बट दिस इज ए वेक्टर, एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, मतलब एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 90 डिग्री, cos of 90 is 0। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आई विल नीड अ पीस ऑफ पेपर, जस्ट अ मिनट। ये देखो बेटा, मैंने एरिया लिया, imagine I am firing bullets on this, when this area is at right angles to me, can I pass maximum number of bullets through this? लेकिन जैसे जैसे बेटा ये मैं रोटेट करता गया, राइट, अभी मुझे सिर्फ ये पेज का लाइन दिख रहा है, थिकनेस, इसमें से बुलेट पास होगा क्या? नहीं होगा ना, बुलेट सीधा चला जाएगा। कम ऑन, द बुलेट कैन नॉट गो दिस वे, इधर, वो सिर्फ रजनीकांत मूवीज में होता है। रजनीकांत मूवीज में बुलेट कैसे लगता है? बुलेट को किधर वॉल पे मारेगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा, और मेरे पीछे राइट। रजनीकांत कभी सीधा बुलेट नहीं मारता, वैसे बुलेट नहीं मारेगा, वो उधर बुलेट मारेगा, इधर बुलेट होके रिफ्लेक्ट होके इधर रहेगा, राइट। वो सब मूवीज में होता है, फिजिक्स में नहीं होता है। दैट इज द बुलेट कैन नॉट गो दिस वे एंड दिस वे, राइट। इफ द एरिया इज दिस वे, मैक्सिमम बुलेट कैन पास थ्रू, राइट। एंड इफ द एरिया इज रोटेटेड, can I say no bullet can pass through? Right? No bullet can pass through means flux is 0. Try to understand why? Because area vector आपकी तरफ है, right? और bullet ऐसे जा रहा है। Angle is 90. Cos of 90 is 0. My answer is 0. Is that very clear? ये आर्टिकल बेटा एकदम ध्यान से पढ़ना।
आपके सिलेबस में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 11th और 12th दोनों बुक्स में। आपकी बुक में एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है। फिर आपकी बुक में एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। और बाद में आपके बुक में चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रो वर्ड आया या तो मैग्नेटिक वर्ड आया, समझ के ले लो कि ये आर्टिकल कंफर्म आने वाला है, कंफर्म, राइट, एकदम कंफर्म आने वाला है। रिमेंबर बेटा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। एरिया इज अ स्केलर बट सरफेस एरिया इज अ वेक्टर, राइट। अभी जितने भी फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन थे डॉट प्रोडक्ट में, वो आप सॉल्व कर सकते हो। दे आर गोइंग टू बी थियोरेटिकल क्वेश्चन। मैं काम करूंगा, मैं जानबूझ के इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सेट करता हूं, राइट, जानबूझ के ऐसे, और वो प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, लाइक ऑलवेज, राइट। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखो बेटा, इसके ऊपर एक एग्जांपल देखो। एक मैं मैथमेटिकल एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, राइट। ये आर्टिकल के बाद आप डॉट प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व करोगे, ओके। जितने भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन लेता हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन फ्लक्स। सपोज उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j, ओके, 3i प्लस 4j प्लस 5k, ओके। और उन्होंने बोला कि एरिया ऑफ 5 स्क्वायर मीटर lies in xy plane, then what is flux? थोड़ा टफ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनो, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन देखो, ध्यान से सॉल्यूशन देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो ये तो वेक्टर है ही ना, ये तो वेक्टर है ही। अपने को दो वेक्टर चाहिए ना, ई बार है डी बार, तो मेरे पास ई बार तो है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मुझे ए बार चाहिए। अब एकदम ध्यान से सुनो, एरिया लाइज इन xy प्लेन, बराबर ना बेटा? मतलब ये सपोज xy प्लेन है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, बराबर? तो बेटा एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर इज अलोंग z एक्सिस। अब इसमें बेस्ट याद क्या रखने का मालूम है? दो की मारामारी में तीसरा आंसर आई जे। तो ये एरिया हो गया ना बेटा, ये आपका पेज, तो ये एरिया वेक्टर होगा अलोंग z। सो आई बार और जे बार अगर एरिया बनाता है तो एरिया वेक्टर इज अलोंग के बार, राइट। अगर एरिया जे बार के बार है, ये वॉल है, तो एरिया वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। याद कैसे रखिएगा? दो की मारामारी में तीसरा आंसर, ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स, आंसर इज ग्रे। इंडिया एंड पाकिस्तान फाइटिंग, यूएस इज बेनिफिटेड। इंडिया एंड पाकिस्तान फाइटिंग, चाइना इज बेनिफिटेड, राइट। आई बार एंड जे बार का आंसर के बार है। सो अगर एरिया xy प्लेन में है तो बेटा एरिया वेक्टर किधर होना चाहिए? z एक्सिस पे होना चाहिए। इसका मतलब एरिया वेक्टर देखो ना ध्यान से, एरिया का साइज है 5 और वो कौन सी एक्सिस पे है बेटा? z एक्सिस पे, मतलब 5k। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वापस देखो, एरिया का साइज है 5, मतलब ये जो शेड कर रहा हूं बेटा मैं, वो 5 मीटर स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? उसका डायरेक्शन होना चाहिए z एक्सिस पे। सो वेर इज एरिया वेक्टर बेटा? z एक्सिस पे, समझा? अब ये प्रॉब्लम इजी है, ध्यान से देखो। फ्लक्स क्या होगा बेटा? ई बार दैट इज 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट 5k, राइट। अभी ध्यान से देखो,
I bar dot k bar is 0, बराबर ना? I bar dot I bar and j bar dot j bar and k bar dot k bar is 1, but I bar dot j bar and j bar dot I bar and I bar dot k bar and k bar dot I bar and j bar dot k bar and k bar dot j bar is 0. मतलब ये 0 हो गया बेटा, ये भी 0 हो गया, सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा. Will it be 5 into 5 k bar dot k bar? इसका मतलब 25 k bar dot k bar is 1 and therefore आपका फ्लक्स का आंसर हो गया 25. Flux is a scalar quantity. Flux is a scalar quantity because flux is dot product of two vectors. Flux is a scalar quantity. Yes everyone? ये एकदम अच्छे से समझा बेटा. This is the complete explanation of dot product of flux. एक और क्वेश्चन बेटा मैं एज अ होमवर्क देता हूं, आप लोग ये खुद से ट्राई करना. If b bar is 7i minus 24j plus 25k and if area is equal to 7 meter square in YZ plane, then what is magnetic flux? राइट? ये आपको आंसर क्रैक करना है. मैं इसकी आंसर की आपको लेक्चर के दिन पे भेजूंगा. फिलहाल मैं ये आंसर डिस्क्लोज नहीं करूंगा. ओके, तो ये बेटा मैं एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भेजूंगा. ओके, ये आप क्रैक करोगे. सो हियर इन पार्ट बी आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ क्रॉस प्रोडक्ट. राइट? आज मैं क्रॉस प्रोडक्ट की पूरी थियरी एक्सप्लेन करूंगा 9b में और 9c में. दैट मीन्स लेक्चर नंबर 10 में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट नंबर 3. और बाद में असाइनमेंट नंबर 4 इज द हाईएस्ट लेवल. यू कैन से JEE मेंस, JEE एडवांस, नीट का हाईएस्ट लेवल. वो हम लोग बाद के लेक्चर में करेंगे. सो वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक हियर.